দেখছেন নিউজ 24 নীলাঞ্জনা রয়েছে আপনাদের সঙ্গে। আজ বারাণসীতে মনোনয়ন জমা দেবেন নরেন্দ্র মোদী। মোদীর মনোনয়নে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে 12 জন মুখ্যমন্ত্রীর। আর মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর 6 কিলোমিটার রোড শোয়ের কর্মসূচিও রয়েছে। 2019 সালে শিবক্ষেত্র কাশী থেকেই ভোটে জিতেছিলেন এবং মোদীর মনোনয়ন ঘিরে রীতিমতন উৎসব নগরীর চেহারা নিয়েছে বারাণসী। নিরাপত্তা ব্যবস্থাও তুঙ্গে। গতকাল রোড শো করেন মোদী এবং আজকে মনোনয়ন জমা দেবেন। গতকাল যোগী আদিত্যনাথ তার সঙ্গে রোড শোয়ে ছিলেন। আজকে 12 জন মুখ্যমন্ত্রী থাকার কথা রয়েছে। গতকালের সেই ছবি আপনারা দেখুন। গতকাল বারাণসীতে রোড শো, মোদীর যোগী আদিত্যনাথকে পাশে নিয়ে রোড শো এবং আজকে প্রস্তুতি রীতিমতন তুঙ্গে। মোদীর মনোনয়ন ঘিরে সতর্ক পুলিশ প্রশাসন, নিরাপত্তা রীতিমতো নাটোসাটো এবং উৎসবের মেজাজ আজ বারাণসীতে। এবং সেখানে কিন্তু সাজো সাজো রব বলা যায়। 12 জন মুখ্যমন্ত্রীর আজকে এই মনোনয়নে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আজকে মনোনয়ন জমা দেবেন নরেন্দ্র মোদী। তার আগে তিনি গতকালকেও রোড শো করেন। আজকেও মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর তার রোড শো রয়েছে, কর্মসূচি রয়েছে। আর এই মুহূর্তে প্রস্তুতির ছবিও আপনারা দেখছেন। বারাণসীতে প্রস্তুতি রীতিমতন তুঙ্গে। সামগ্রিকভাবে আরও বিস্তারিতভাবে প্রস্তুতি সেই ছবি আমরা জানবো। রাজীব চক্রবর্তী রয়েছেন আমাদের সঙ্গে, আমাদের প্রতিনিধি। রাজীব, আর ঠিক কি আপডেট এখন রয়েছে? দেখো, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজকে মনোনয়নপত্র পেশ করবেন, আর যাকে ঘিরে একেবারে কিন্তু সাজো সাজো রব রয়েছে বারাণসী জুড়ে। আজকে সকালবেলায় তিনি দশাশ্রমের ঘাটে পৌঁছবেন এবং দশাশ্রমের ঘাটে সেখানে তিনি গঙ্গা পুজো করবেন, স্নান করবেন, সেখানে সাক্ষাৎকার দেবেন। ফলে দশাশ্রমের ঘাটে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটাবেন তিনি এবং তারপর তিনি সেখান থেকে যাবেন কাল ভৈরব মন্দিরে, সেখানে পুজো দেবেন এবং সেখানেও বেশ কিছুক্ষণ পুজো দেওয়ার পর সেখান থেকে কার্যত তিনি একেবারে র্যালি করে সেখান থেকে কিন্তু শোভাযাত্রার মাধ্যমে বলা যেতে পারে তিনি জেলা শাসকের দপ্তরে পৌঁছবেন। তার কারণ 11:45 থেকে 12টা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মনোনয়নপত্র পেশ করবেন। এই সময়টিকে বলা হচ্ছে গঙ্গা নবমী। আজকে গঙ্গা নবমী এবং এই সময়টিকে বলা হচ্ছে যে শুভ মুহূর্ত। সেই কারণেই কিন্তু এই সময়টিকে বেছে নেওয়া হয়েছে বলে সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে। এবং তারপর 12:15 নাগাদ সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি একটি কনভেনশন সেন্টারে যাবেন। স্থানীয় সেই কনভেনশন সেন্টারে সেখানে দলীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। আর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই দলীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করার পর সেখানে তিনি এয়ারপোর্টে যাবেন। এয়ারপোর্ট থেকে ঝাড়খণ্ডের নির্বাচনী প্রচারের জন্য বেরিয়ে যাবেন। প্রধানমন্ত্রী মনোনয়ন পেশে আজকে উপস্থিত থাকার কথা অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ। সঙ্গে থাকো রাজীব, আমাদের প্রতিনিধি জেপি শর্মা, তিনি রয়েছেন বারাণসী থেকে। सुरक्षाकर्मी यहाँ पहुंच गए और थोड़ी देर में आपको ये तस्वीरें देखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं, बस आपको थोड़े ही अगले सेकंड में हमारे फ्रेम में नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए ये तस्वीरें आप देखिए, ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हुए आप देख सकते हैं। तस्वीरें आ गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए। ये तस्वीरें आप देखिएगा। हम सीधी तस्वीरें आपको बता दें कि गंगा घाट, दशाश्वमेध घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहाँ पूजा अर्चना करेंगे। इन तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे हैं और दर्शन पूजन करेंगे। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं। वो तस्वीरें मैं आपको ये देखिए, प्रधानमंत्री नीचे उतरते हुए और जहां ये पुजारी हैं वहां पहुंचेंगे और वहां पूजा अर्चना होगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये गंगा घाट पर जाते हुए प्रधानमंत्री हाथ हिलाते हुए हमारे सहयोगी, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं और दर्शन पूजन करते हुए आपको दिखा देंगे। ये तस्वीरें आप देखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जहां ये पुजारी हैं, मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी पुजारियों की तरफ कैमरामैन फोकस करें। यहाँ फोकस करेंगे जहां पर ये पुजारी हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुँच रहे हैं और यहाँ पूजा अर्चना का कार्यक्रम होगा। ये उतरते हुए सीढ़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में नजर आ जाएंगे और अब यहाँ पूजा अर्चना होगी, क्योंकि जिस तरह गंगा सप्तमी का दिन है, गंगा सप्तमी एक पुण्य की प्राप्ति होती है गंगा में स्नान करने भर से, और अब यहाँ पूजा अर्चना का कार्यक्रम उनका है। तो वो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और क्योंकि यहाँ कल आपको बता दें कि
नामांकन आज होना है। कल रोड शो किया था, एक पूरी ताकत दिखाई गई थी और नामांकन से पहले पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये देखिए तस्वीरें आप देखिएगा, आपको तस्वीरें हम आपको सुपर एक्सक्लूसिव प्रधानमंत्री आप देख सकते हैं तस्वीरों में। यहाँ जो पुजारी हैं उनसे मिलते हुए, उनसे बातचीत करते हुए आपको नजर आ जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, देख पा रहे होंगे आप, हमारे सहयोगी आपको सदाशिव आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब यहाँ ये पूजा अर्चना हो रही है। अब ये देखना होगा क्या आप वो गंगा स्नान करेंगे या सिर्फ पूजा करेंगे, ये अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि वहाँ पर पूरी तरह क्रूज भी तैयार है। काल भैरव मंदिर की तरफ वो रवाना होंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण है। गंगा से उनका एक लगाव है, क्योंकि 2014 में आपको याद होगा उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई और उन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। और अब वो कहते हैं कि देखिए 10 बरस हो गए, मुझे ऐसा लगता है कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है। पूजा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में आ जाएंगे, गंगा माँ की पूजा कर रहे हैं। और गंगा सप्तमी का ये दिन है, बहुत पावन दिन है। 14 मई तारीख तय की गई है नॉमिनेशन के लिए और माना ये जा रहा है कि इसीलिए 14 मई को चुना गया क्योंकि आज गंगा सप्तमी का दिन है। क्योंकि लाखों करोड़ों लोग, चाहे वो हरिद्वार हो, वाराणसी हो या प्रयागराज हो, वहाँ डुबकी लगा रहे हैं, आस्था की डुबकी। और माना जाता है कि गंगा की पूजा करना से अर्चना करना बहुत शुभ काम करना। अगर आप चाहते हैं तो गंगा मैया की आप पूजा अर्चना कीजिए और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। और देखिए आप देख सकते हैं हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पूजा अर्चना करते हुए। तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपको वाराणसी के दशाश्वमेध घाट से दिखा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दर्शकों को बता दें कि इसके बाद वो क्रूज में सवार होंगे और बताया जा रहा है कि वो नमो घाट के लिए रवाना होंगे। नमो घाट के बाद काल भैरव मंदिर के भी दर्शन करेंगे, क्योंकि काल भैरव को आपको बता दें कोतवाल कहा जाता है काशी का। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले कोतवाल के वहाँ हाजिरी लगाएंगे और फिर नॉमिनेशन के लिए 11:40 बताया जा रहा कलेक्ट्रेट दफ्तर पर उनका नॉमिनेशन होगा, जहां सीएम योगी भी रहेंगे आपको बता दें, और गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बताया जा रहा है, बीजेपी के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तमाम वहां पहुंचेंगे। इसके अलावा दर्शकों को ये भी एक अहम जानकारी दे दें, जब उनका नॉमिनेशन हो जाएगा उसके बाद बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात होगी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में और वहां उनसे बातचीत करने के बाद वो यहां से झारखंड के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां उनका चुनावी सभाएं हैं। लेकिन अभी तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, दशाश्वमेध घाट से हम तस्वीरें दर्शकों को लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें कि पूजा अर्चना कर रहे हैं, गंगा माँ की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि उनका कोई भी कार्यक्रम होता है, वो कल उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, उसके बाद गंगा मैया की पूजा कर रहे हैं, उसके बाद दर्शकों को बता दें कि काल भैरव के दर्शन करेंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण ये तस्वीर हो जाती है। और एक चाहे वो देखिए 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो, आप ये देखेंगे कि 2022 का विधानसभा चुनाव का मैं जिक्र कर रहा हूं, जब विधानसभा चुनाव में ऐसा माना जा रहा था कि वाराणसी पूर्वांचल की सीटों पर बीजेपी की दमदारी कमजोर लग रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में भी आपको बता दें रोड शो किया था। इसी तरीके से उन्होंने भगवान के दर्शन किए थे और उस रोड शो का एक असर ऐसा हुआ कि पूरे पूर्वांचल में एक माहौल बना और फिर से योगी सरकार लौट कर आई थी। ये एक समीकरण बनते हैं दीपाली, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण मैं समीकरण आपको बता रहा हूं। वही कोशिश है, क्योंकि अभी देखिए 3 चरण बाकी हैं अभी, क्योंकि वोटिंग होनी है, 20 तारीख को वोटिंग होगी। इसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर पूर्वांचल की ज़्यादातर सीटों पर अभी चुनाव होना है। पूर्वांचल के जरिए आपको बता दें कि बिहार को भी साधने की कोशिश है। और सबसे बड़ी बात है, ये आस्था का केंद्र है काशी, बनारस एक आस्था का केंद्र है लोगों का। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु, चाहे वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हर राज्य का आपको बता दें कि श्रद्धालु यहाँ पहुँचता है। और वो एक बदलाव देखना चाहता है कि वाकई में काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सांसद के तौर पर काम किया और कितना काम किया, उसका कितना असर है वो बनारस में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो वो एक आकलन भी करता है एक वोटर। और जिस तरह हमने लोगों से भी बात की, लोगों ने यही बताया कि बनारस बदला है। काशी की जो तंग गलियां होती थी वहां अब चौड़ीकरण हो गया है, सौंदर्यकरण हो गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सांसद के तौर पर यहाँ बहुत काम किए हैं। गंगा में जो क्रूज आप देख भी रहे होंगे, तस्वीरों के जरिए हमने दिखाया भी था, क्रूज गंगा में चाहे चलाने का काम हो, ये भी एक बहुत बड़ा है। यहाँ पर लोग इसी क्रूज के जरिए घूमते हैं, विदेशी सैलानी भी यहाँ पहुँचते हैं। तो ये अपने आप में एक आस्था का केंद्र है। दशाश्वमेध घाट बहुत महत्वपूर्ण घाट है।
बहुत पुराना घाट है वाराणसी का और बरसों से सदियों से इस पर यहाँ पर आपको बता दें पूजा होती है। दशाश्वमेध घाट की एक मान्यता है कि यहाँ पर 10 यज्ञ हुए थे और यहाँ पर गंगा स्नान किया था बहुत सारे ऋषि मुनियों ने, इसलिए इसकी बहुत ही महत्ता है दशाश्वमेध घाट की। और यहाँ पर जो भी कोई वीआईपी आता है या आम लोग आते हैं, आपको बाकी घाटों की, अगर हम 80 घाट की बात करते हैं, क्योंकि वाराणसी में गंगा किनारे माना जाता है कि 80 घाट है, लेकिन दशाश्वमेध घाट सबसे महत्वपूर्ण घाट होता है। जो भी श्रद्धालु आता है वो यहाँ पर पूजा अर्चना करता है और तस्वीरों में हम लगातार दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, पूजा अर्चना का कार्यक्रम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा कर रहे हैं और एक तस्वीर मैं चाहूँगा, एक तस्वीर मेरे सहयोगी दिखाएं। देखिए लोगों की भीड़ वहाँ पर है, लोगों की भीड़ आपको नजर आएगी, लोग भी उनको वहाँ दूसरे घाट से आपको नजर, ये हमारे सहयोगी सदाशिव दिखाएंगे, अपने कैमरे में कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये कैमरा आप देख सकते हैं, इस कैमरे के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरे कैमरे के जरिए, कि लोगों का कैसे यहाँ हुजूम उमड़ा हुआ है। यहाँ काफ़ी तादाद में यहाँ पर भीड़ नज़र आ रही है, बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। एक महत्वपूर्ण तस्वीर, नॉमिनेशन, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का नॉमिनेशन है। बीजेपी हैट्रिक की बात कर रही है, बीजेपी 400 पार की कह रही है। चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, सेंटर केंद्र बिंदु हैं। केंद्र बिंदु ये इसलिए भी बन जाता है, वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। एक मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात से उनकी एंट्री होती है और फिर यहाँ वो 2014 के अंदर चुनाव लड़ते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत यह है कि उन्होंने अपने चुनाव में कभी जनसभाएं नहीं की है। वो जब भी आते हैं बनारस के अंदर सिर्फ और सिर्फ रोड शो करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं और पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके चलाए जाते हैं और उनकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। चाहे आप 2014 आप उठा के देखेंगे, 2019 आप देखेंगे और 2024 में भी आज आपको बता दें उन्होंने यही किया है। 2019 में भी उन्होंने यही किया और ये आप देख सकते हैं कि हम जो आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि आज भी वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। कल रोड शो किया और नॉमिनेशन करके निकल जाएंगे, क्योंकि उन पर जिम्मेदारी है। बहुत सारे चुनावी जनसभाएं, बहुत चरणों में, अभी कई राज्यों में चुनाव बचा हुआ है, तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर है और उसी को जिम्मेदारी को निभाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ यहाँ नॉमिनेशन करके और पदाधिकारियों से मिलकर चले जाएंगे। क्योंकि बीजेपी मान रही है कि एक तरह से जो रोड शो किया था कल, वो रोड शो से एक माहौल तैयार हुआ है। पिछली बार आपको बता दें 6,75,000 के आसपास वोटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी जीते थे, लेकिन अब लोग यहाँ कह रहे हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो समर्थक है, सपोर्टर है, वो अब ये दम भर रहे हैं कि बीजेपी इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ 10 लाख वोटों से भी ज़्यादा जीत सकते हैं, इस तरह का दावा किया जा रहा है। हालांकि देखिए विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय यहाँ चुनावी मैदान में हैं, वो उनसे उनका मुकाबला है। अजय राय पहले भी चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।